ریاست کی تشکیل کے 10 سال کی تکمیل پر جشن کے سلسلے میں قبائلیوں میں پوڈیو اراضیات کی تقسیم کی جائے گی۔ ریاست بھر میں اس خصوص میں دیہاتوں میں سرکاری اراضیات کی نشاندہی کرنے کی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ 24 جون سے 30 جون تک قبائلیوں میں پوڈیو اراضیات کے پٹاجات تقسیم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں یوم تاسیس تقریب کے لیے اعلیٰ سطحی عہدیداروں کا ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے اعلیٰ عہدیداروں کو مناسب ہدایتیں دیں۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ریاست بھر میں KCR نیوٹریشن کٹس کی تقسیم کی جائے گی۔ 9 اضلاع میں پہلے اس پروگرام پر عمل کیا گیا تھا، تاہم اس کی توسیع کی جا رہی ہے۔ ریاست کے 33 اضلاع میں 6.84 لاکھ حاملہ خواتین کو 1046 مراکز کے ذریعے 13.08 لاکھ کٹس کی تقسیم کرنے کا حکومت نے نشانہ رکھا ہے۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کھاد پر سبسڈی میں کمی پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر مرکزی وزیر کشن ریڈی کے بیانات مزاح کا خیز ہیں۔ انہوں نے ونپرتی ضلع مستقر میں وشوا گرو اسمارٹ فیڈ گولڈ کی رسم اجرا انجام دی۔ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کو انہوں نے ناکام اسکیم قرار دیا۔ وزیر افزائش مویشیات تھرسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ 10 کروڑ روپے کے صرفے سے لال دروازہ مندر کو ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چندرائن گٹا اسمبلی حلقے کے اپوگوڑا میں 5 کروڑ روپے کی مالیت سے ملٹی پرپز تعمیری کام انجام دیے جائیں گے۔ چندرائن گٹا حلقے میں 4 ہمہ مقصدی فنکشن ہالز تعمیر کیے جائیں گے۔ حکومت تلنگانہ تہذیب اور ثقافت کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے صدر PCC ریونت ریڈی کے ان پر کیے گئے ریمارکس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی تلنگانہ میں ان کی پارٹی کی مقبولیت کے سبب اپنی سیاسی بقا اور سیاسی مستقبل کے لیے کافی فکر مند ہیں، کیونکہ عوام کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے وہ تلنگانہ کا دورہ کر رہی ہیں۔ اس کا مقصد عوام کے دکھ درد اور عوامی مسائل پر حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے، جبکہ بقیہ جماعتیں صرف قومی جماعتیں ہیں۔ ان کی پارٹی ہی تلنگانہ کی واحد پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے آندھرا سے آنے والی شخصیت ان کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ سونیا گاندھی کہاں سے آئی ہیں۔ ریونت ریڈی کو خواتین کا احترام کرنا چاہیے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دہلی کے اپنے ہم منصب اروند کیجریوال کو تیقن دیا کہ ان کی پارٹی شہر میں تقررات پر کنٹرول اور عہدیداروں کے تبادلوں سے متعلق مرکز کے آرڈیننس کے خلاف لڑائی میں ان کا ساتھ دے گی۔ تقریباً 1 گھنٹہ طویل ملاقات کے بعد ممتا بنرجی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ زعفرانی جماعت اپوزیشن کی حکومتوں کو توڑنے کے لیے ارکان اسمبلی کو خریدتی ہے۔ CBI اور ED کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بنگال کے ساتھ ساتھ پنجاب جیسی غیر BJP حکومتوں کو متاثر کرنے کے لیے گورنرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ہم مرکزی آرڈیننس کے خلاف لڑائی میں عام آدمی پارٹی کی تائید کرتے ہیں۔ تمام جماعتوں سے درخواست ہے کہ وہ BJP کے قانون کے حق میں ووٹ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ووٹنگ 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے سیمی فائنل ہوگی۔ BRS نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر YSR تلنگانہ پارٹی کی سربراہ YS شرمیلا کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی مذمت کی ہے۔ رنگاریڈی ضلع پریشد کے نائب صدر نشین E گنیش اور دوسروں نے متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ راج شیکھر ریڈی پر پودھی ریڈی پاڈو کے پانی کی آندھرا پردیش منتقلی کا الزام لگایا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم اور کانگریس کے دور حکومت میں ریاست میں تعمیر کردہ پروجیکٹس کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹس کے ذریعے ریاست سے ناانصافی کی گئی ہے۔ مجلس کی کامیاب نمائندگی پر نیو حکیم پیٹ میں 80 فٹ کا
ریمپ منظور کیا گیا ہے۔ آج مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے اس ریمپ کے سلسلے میں علاقے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے ابتدائی مجالس کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ عہدیداروں کے ساتھ اس علاقے کا آج دورہ کیا۔ اس دورے کے موقع پر ان کے ساتھ نانل نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین، GHMC عہدیدار ڈپٹی ای راما کرشنا، ای ادے نے پہاڑوں کو کاٹنے، فلورنگ اور ریلنگ کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ محبوب نگر کلکٹریٹ کے قریب سروے نمبر 551-255 میں 6 ایکڑ اراضی میں غریبوں کی جھوپڑیوں کو ریونیو اور میونسپل حکام نے منہدم کر دیا۔ پولیس کی سخت سیکیورٹی کے درمیان جھوپڑیوں کو منہدم کرنے کی کارروائی انجام دی گئی، جس سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ بائیں بازو کی جماعتوں کی قیادت میں غریب خواتین نے جھوپڑیوں کو ہٹانے سے روکنے کی کوشش کی، جس سے خواتین اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار ہو گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی علاقے میں کشیدگی دیکھی گئی۔ محکمہ موسمیات نے گرما کے موسم میں بارش سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق ریاست بھر میں جاریہ سال 1 مارچ سے 22 مئی تک 14 سینٹی میٹر بارش درج کی گئی ہے۔ معمول کے مطابق گرما میں بارش 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، تاہم جاریہ سال 167% زائد بارش درج کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں سب سے زیادہ 23 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ بارش معمول سے 274% زیادہ ہے۔ جنگاؤں میں 22 سینٹی میٹر، محبوب آباد میں 22، کاماریڈی میں 20، بھدرادری کوتاگوڑم میں 19 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سب سے کم بارش نلگنڈا ضلع میں درج کی گئی۔ اس ضلع میں 6 سینٹی میٹر بارش درج کی گئی۔ شہر حیدرآباد میں ایک مرتبہ پھر IT کی ٹیموں نے تلاشی لی۔ 20 مقامات پر IT کی ٹیموں نے تلاشی لی۔ کوہ نور انفرا کمپنی میں بھی تلاشی لی گئی، جس کے کارپوریٹ آفس کے بشمول بورڈ ڈائریکٹرز کے مکانات میں بھی تلاشی انجام دی گئی۔ اس تلاشی مہم کا آغاز صبح 6 بجے ہوا۔ مدنہ پیٹ، کنڈاپور، مہدی پٹنم کے بشمول دیگر مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے یہ تلاشی لی گئی۔ LB نگر DCP سائی سری رنگا ریڈی نے میر پیٹ پولیس اسٹیشن میں CDEW کاؤنسلنگ سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ خواتین اپنے مسائل کے حل کے لیے کاؤنسلنگ سینٹر سے رجوع ہوں۔ ایراگڈا ریتو بازار میں نقلی بیج کی فروخت کی گئی۔ لائسنس کے بغیر مدت کارآمد کی تکمیل والے بیج اور کھاد کی فروخت کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی۔ ٹاسک فورس نے اس سلسلے میں دھاوا کیا، جس کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آیا۔ جونیئر پنچایت سیکریٹریز کی خدمات کو باقاعدہ بنانے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے فیصلے پر TPSFO کے قاضی ششی دھر نے مسرت کا اظہار کیا۔ ریاست میں 9355 عہدیداروں کی طرف سے انہوں نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ تمام ملازمین زندگی بھر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے مقروض رہیں گے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی پہلی قومی کانفرنس 28 مئی کو حیدرآباد میں منعقد کی جائے گی۔ اس سلسلے میں عادل آباد یونٹ فیڈریشن کے ضلعی صدر شاہد احمد توکل کی صدارت اور سرپرست اعلیٰ محبوب خان کی زیر سرپرستی و سرپرست حمید اللہ انور صاحب کی موجودگی میں پہلی قومی کانفرنس کے پوسٹرز کی اجرائی فیڈریشن کے ذمہ دار وہ اراکین نے عادل آباد میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی و BRS پارٹی کونسلرز کے ہاتھوں عمل میں لائی۔ اس موقع پر میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی نے خطاب کرتے ہوئے اردو صحافیوں کی پہلی قومی کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے اردو صحافیوں سے خواہش کی اور فیڈریشن سے وابستہ صحافیوں کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کروائی۔
गांधी हॉस्पिटल से बरतरफ आउटसोर्सिंग स्टाफ ने एहतजाज करते हुए इनकी खिदमात वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोविड जैसे मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की खिदमत अंजाम दी, उनकी खिदमत वापस ली जाएं। उन्होंने अपने मुतालबे के साथ गांधी हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद गांधी जी के मुजस्समे के सामने ये एहतजाज किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तकरीबन 4 दिनों से एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है और उनके एहतजाज को हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त किया गया। कस्टम हुकाम ने गुज़िश्ता शब इमरजेंसी बैटरी में छुपा कर लाए गए सोने को जब्त कर लिया। एक इत्तला पर कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए दुबई से एमिरेट्स की फ़्लाइट के ज़रिए कल शब तकरीबन 3 बजे हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर के सामान की तलाशी ली। इसके सामान में मौजूद इमरजेंसी लाइट को खोलने पर बैटरी की शक्ल में लाए गए इस जर्द धात का पता चला। बाद 1,81,60,450 रुपये मालियत के 2,915 ग्राम सोने को जब्त कर लिया गया और इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजी तहरीक के हामी एक तेलुगु निजाद अमरीकी नौजवान को अमरीकी सदर जो बाइडन को हलाक करने के मंसूबे के इल्जामात पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने व्हाइट हाउस के करीब लारी को घुसा देने की कोशिश की थी। इसकी शिनाख्त साई कंडुल्या के तौर पर की गई है। इसका ताल्लुक अमरीकी रियासत मसूरी से है। पार्क पुलिस और यूएस सीक्रेट के मुताबिक मुलजिम नाजी हामी था। इसने जानबूझकर गाड़ी को दीवार से टकराया। पुलिस को इसने पूछताछ के दौरान बताया कि वो बाइडन का कत्ल करना चाहता था। इस नौजवान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने, अमलाक को तबाह करने और सदर के कत्ल की साजिश के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अमरीकी और हिंदुस्तानी मीडिया ने इस वाक़े की रिपोर्ट्स पेश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साई वर्षित कंदुला चेस्टफील्ड मसूरी रियासत अमेरिका में मुक़ीम था। इसने 2022 में मार्क्वेट सेंटर हाई स्कूल से ग्रेजुएशन मुकम्मिल किया था। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों नामपल्ली असम्बली हल्के में करोड़ों रुपये के तरक्याती कामों का आगाज किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली असम्बली हल्के के ज़ेबाबाग विक्टोरिया होटल के करीब 5 करोड़ 38 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद मुख्तलिफ डिवीजन में भी मुनक़िद की गई इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात भी की है। इस मौके पर एमएलए जाफर हुसैन मेराज, साबिक मेयर माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर जफर खान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम के अलावा मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वजीर तलासानी सी निवास यादव ने लाल दरवाजा सिम्हावानी मंदिर की तज़ीन व आराइश के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के उपगुड़ा में तलासानी ने 5 करोड़ रुपये की लागत से 4 फंक्शन हॉलों के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सकाफत और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मेहनत कर रही है। तेलंगाना की तश्कील के बाद से बोनाल त्यौहार शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि केसीआर का मकसद तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलना और उन्हें खुशबाश देखना है। उन्होंने लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें करने वाली सियासी जमातों से मुहतात रहने का मशवरा दिया है। वज़ीर तालीम व हल्का असम्बली महेश्वरम की रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने एसएनडीपी के कामों के पेशरफ्त का जायजा लिया है। हल्का असम्बली महेश्वरम के मीरपेट और जलपल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जारी एसएनडीपी के कामों का जायजा लेते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को जंगी खतूत पर उन कामों को मुकम्मिल करने का हुक्म जारी किया। उन्होंने बताया कि 90% काम मुकम्मिल किए जा चुके हैं और बाकी कामों को जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर बडंगपेट कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर इब्राहिम शेखर, बडंगपेट के सदर आर रामी रेड्डी, ओहदेदार बीआरएस कायदीन व दीगर मौजूद थे। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2022 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस मरतबा 33 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं।
गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मुस्लिम उम्मीदवारों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। टॉप 100 में 4 मुसलमान नाम भी शामिल हैं। जुमला 33 उम्मीदवार ने इस इम्तिहान को कामयाब किया है। कश्मीर के वसीम अहमद भट्ट को कौमी सतह पर 7वां रैंक हासिल हुआ है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के एक वफ्द ने आज़मीन हज को टीका अंदाजी के लिए नामुनासिब इंतजामात और अस्पतालों में बदनज़मी की शिकायत पर किंग कोठी सरकारी अस्पताल और नामपल्ली सरकारी अस्पताल का दौरा किया। तेलंगाना हज कमेटी व महकमा सेहत के इश्तिराक से शहर के 4 सरकारी दवाखानों में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी का नज़्म किया गया था। ताहम नामुनासिब इंतजामात और आज़मीन के हुजूम के सबब अस्पतालों में बदनज़मी देखी गई। सैकड़ों आज़मीन को टीका अंदाजी के लिए कतारों में खड़े रहने के बावजूद ना तो टीका दिया जा सका और न ही उनका मुआयना किया जा सका। नामपल्ली सरकारी अस्पताल और किंग कोठी सरकारी अस्पताल में आज़मीन को टीका अंदाजी न दिए जाने और अस्पताल अमले की जानिब से हुजाज के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करने का इल्म होने पर सूफी खैरुद्दीन कादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की क़यादत में एक वफ्द ने सरकारी अस्पताल जाकर वहां लगाए गए टीका अंदाजी कैंप का जायजा लिया। मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने मुनासिब इक़दाम न करने और हुजाज के साथ इस तरह का बर्ताव करने की शिकायत सेंट्रल हज कमेटी से करने का इंतबाह दिया है। उन्होंने टीका अंदाजी और तिबी जांच के लिए आने वाले हुजाज की रहनुमाई के लिए हज कमेटी अमले की अदम मौजूदगी पर भी शदीद नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि हज कमेटी साबिक़ा में IPM से टीका हासिल करते हुए हज हाउस में ही टीका अंदाजी का नज़्म करती थी। दूसरी जानिब असरा दवाखाने में भी आज़मीन की टीका अंदाजी का इंतजाम किया जाता था, लेकिन इस बार सरकारी अस्पतालों में इसका नज़्म किया गया है, जिससे आज़मीन को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और इस तरह की तब्दीली करने से उनमें बरहमी पाई जा रही है। तेलंगाना के वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि रियासत में अनाज की खरीदारी का अमल तेजी और आसानी से जारी है। अब तक 38 लाख से ज़ायद मेट्रिक टन अनाज खरीदा गया है। गंगुला कमलाकर ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में अनाज की खरीदारी पर सिविल सप्लाईज कमिश्नर अनिल कुमार के साथ एक खुसूसी इजलास किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR की किसान दोस्त पॉलिसियों से तेलंगाना अनाज की पैदावार में मुल्क में पहले मुकाम पर है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ताउन न किए जाने के बावजूद भी अनाज को खरीदा जा रहा है। वजीर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 7,000 खरीदी मराकज़ के जरिए 6,05,000 किसानों से 1.5 लाख मेट्रिक टन अनाज खरीदा गया है। गंगुला कमलाकर ने हुकाम को अनाज की खरीदारी में दरपेश मसाइल को फौरी हल करने और संगीन हालात में किसानों को नुकसान से महफूज रखने के लिए चौकस रहने का हुक्म दिया है। मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा ने कहा है कि सहाफ़ियों को मकानात फराहम करने के मामले में हर रुकन असम्बली को पहल करते हुए सहाफ़ियों के मसले को हल करना चाहिए। TUWJ के ज़ेर एहतमाम ग्रेटर वरंगल प्रेस क्लब में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नमेंट व्हिप DV ने भास्कर वर्धनापेट के MLA A रमेश और मारुति सागर ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए अल्लम नारायणा चेयरमैन मीडिया एकेडमी ने कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए यूनियंस को पहल करनी चाहिए। उन्होंने अराकीन असम्बली पर भी जोर दिया है कि वो सहाफ़ियों को मकानात की फराहमी के लिए इक़दाम करें, क्योंकि मकानात की अदम फराहमी के सबब हुकूमत की छवि मुतासिर हो रही है। बाद-अज़ां प्रेस क्लब के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वालों को भी एजाज़ से नवाजा गया। तहनीती इजलास से कबल ईस्ट वरंगल हल्के में सहाफ़ियों के लिए MLA नरेंद्र के तामीर करवाए गए डबल बेडरूम मकानात का भी मुआयना किया गया। MLC बसवराज सरैया वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। UIDAI की जानिब से आधार कार्ड को मुफ्त ऑनलाइन अपडेट करने के लिए मौका फराहम किया जा रहा है। अवाम 14 जून तक मुफ्त में अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। आधार कार्ड को UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आमतौर पर 50 रुपये फीस वसूल की जाती है, लेकिन सिर्फ माई आधार वेब डॉट पेज पर मुफ्त अपडेट की सहूलत मुहैया करवाई गई है।
आधार सेंटर से रुजू होने पर आवाम को कवायद के मुताबिक फीस अदा करनी होगी। ऐसे शहरी जो अपना आधार मुफ्त अपडेट करवाना चाहते हैं वो इस सहूलत से 14 जून तक इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। 14 जून के बाद उन्हें मामूल के मुताबिक फीस अदा करनी होगी। अपने आधार को अपडेट करने के लिए https://myaadhar.uidai.gov.in पोर्टल पर जाकर वहां अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा और OTP हासिल होने के बाद नाम समेत दीगर तफसीलात वगैरह अपलोड करनी होगी। तेलंगाना स्टेट लैंड प्रोटेक्शन समिति के ज़ेर एहतमाम एक कुल जमाती इजलास सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मुनक़िद किया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से SC, ST, BC और गरीब किसानों को दी गई अराज़ियात पर गैर कानूनी कब्जा किए जाने के मामले पर एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर सर्वे सत्यनारायण, तेलंगाना जना समिति सदर प्रोफेसर कोदंडराम, लैंड प्रोटेक्शन समिति के चेयरमैन R रामू वोदीकर ने इस इजलास में शिरकत की और रियासती हुकूमत के इस गैर कानूनी इक़दाम को रोकने और अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ करने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। हसन-नगर इलाके में रॉडी शीटर की हरासानी से परेशान अवाम ने राजेंद्र नगर DCP से उन्हें हरासा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में रॉडी शीटर्स की जानिब से वक्फे से अवाम पर जुल्म करने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। रॉडी शीटर की हरासानी, मारपीट और हालत नशा में हंगामा आराई करने से लोगों में दहशत पाई जा रही है। खदीर नामी एक रॉडी शीटर की जानिब से हसन नगर मदीना मस्जिद के करीब नशे की हालत में एक शख्स के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसे मामूल ना देने वाले दुकानदारों पर भी उसने जुल्म किया। मुकामी लोगों ने इसकी शिकायत फौरी मुताल्लिक़ा पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर रॉडी शीटर को तहवील में ले लिया है। हसन नगर के मकीनों ने इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है और राजेंद्र नगर DCP जगदीश्वर रेड्डी और ACP से मुतालबा किया है कि वो लोगों को परेशान करने वाले, उन पर जुल्म करने वाले अफराद के खिलाफ कोई शिकंजा कसते हुए उन्हें राहत पहुँचाए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको CCTV कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास CCTV कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।